Jai Gurudev to all of you. Now we are going to start the physics. मतलब साइंस का जो फिजिक्स चैप्टर है motion. Now we are going to the start. First of all, we should know how many topics and how many chapter you have to complete in all year. So as you know, you can see on a screen that according to the NCRT book, we have to complete in all year that 5 chapter. Okay, first is motion. Then you can see the name chapter name is motion, which is according to the NCRT, the chapter number 8, motion. Then after that, we have to complete after motion. The next chapter name is force and law of motion. Force and law of motion. The next chapter is after this ग्रेविटेशनल, ठीक है, एंड फ्लोटेशन भी इसी में है. This year we have not deleted any topics because any guideline is not present according to the CBSE rule कि इस ईयर कुछ डिलीट करना है या नहीं. तो पूरा हमें अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब इस सारे टॉपिक्स वी हैव टू कवर. आफ्टर ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, वर्क एंड एनर्जी, work and energy. That last is sound, the chapter number 5, sound. So first of all we have to start the chapter 8 according to the NCRT and motion. Okay, so as you know, you can see the in a motion how many topics we have to cover. So you can write, if you have you should prepare with NCRT book and proper pen and pencil कि how many topics you have to cover and how many kinds and related to the NCRT we have to complete questions. Now we will do. The first is introduction of physics. Introduction of physics means what is the meaning of physics. You know that. First of all we will discuss about the physics. It is a part of, it is a branch of science. Then after that, motion. What is the motion? And next topic is concept of distance and displacement. Okay, if you are listen, then you can write concept of distance and displacement. Okay, then after that, kinds of motion. There are 3 kinds of motion: straight line, uniform and non-uniform motion. Time to time we will discuss kinds of motion. Then after that, speed and its types, velocity and its types, acceleration and its types. And after this जो रहेगा अपना सेकंड पार्ट, इसी में ही मतलब इसी चैप्टर में है, ग्राफ्स एंड इट्स टाइप्स. यू कैन सी हाउ मेनी टाइप्स. ग्राफ मतलब ये इस टाइप की ग्राफ्स, ये ग्राफ, ये इस टाइप की जो अपने ग्राफ होते हैं. यू कैन सी स्क्रीन, ये ग्राफ एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. और आफ्टर दैट एक्सटी ग्राफ क्या होते हैं और इसके टाइप्स, वीटी ग्राफ एंड इट्स टाइप्स. एंड कैलकुलेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ग्राफ. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट करना. एनसीईआरटी में आपको दिया है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर एनसीईआरटी बुक आल्सो. एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, equation of motion and its derivation. There are 3 types of equation of motion we have to complete. We have to derive by a graphical method. At last, uniform circular motion with example और फिर इसके numericals और at last में NCERT question answer. ठीक है. So first of all we should start main. What is the factor of matter? Means you can see an object is said to be in motion when its position change with time. That means
a body can be, except a body can be having the two situation, two position. The first is rest and second is motion. If the body having a rest condition, body having a rest position, body can see a rest position में है, just you can see body rest position में है, so we can say कि body रेस्ट कंडीशन में, जैसे कि बॉल है कोई, इस कंडीशन में बॉल, और व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस बॉल, सो बॉल विल मूव, सो इसी बॉल का जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई, मोशन में आ गई, ठीक है, मोशन में आ गई, सो वी कैन से कि इट इज द मोशन पोजिशन ऑफ द बॉल. सो ड्यूरिंग दिस चैप्टर वी हैव टू explain, we have to study about the motion of the body, मोशन कंडीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. मोशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ही मोशन होगा, विदाउट टाइम के मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पाथ चेंजेस विद टाइम, ठीक है, विद टाइम. अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, वी कैन सी इट इज अ मोशन पोजीशन ऑफ द बॉडी, मोशन, मूवमेंट कंडीशन, ठीक है. इफ योर बॉडी नॉट चेंजिंग पोजीशन, सो वी कैन से इट इज अ बॉडी हैविंग अ रेस्ट पोजीशन. तो यहाँ पर तो मोशन कंडीशन है. तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है. तो ये तो हो गई मोशन की डेफिनेशन की, बॉडी आर चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द मोशन, movement of the body. Then after that we describe the location of an object by specifying a reference point, starting point or reference point. Motion is relative, the total path covered by an object is said to be the distance traveled by it. So we can say motion जब होता है तो उसमें distance भी होता है, displacement भी, ठीक है. डिस्टेंस भी होता है, तो कॉन्सेप्ट हमारा डिस्टेंस का क्या है और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ठीक है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट. सपोज रेस्ट पर है या फिर वो मोशन कंडीशन में है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, रेस्ट पर है, मूवमेंट नहीं है, तो वी कैन से इट इज अ रेस्ट पोजीशन. अब इस पे फोर्स अप्लाई किया और ये मूवमेंट में आ गया, मोशन में आ गया, तो ये यहां से हट के कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दी इसने, ये यहां पर आ गया, ये हमारा ए पॉइंट हुआ. सपोज ये बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, ठीक है. अब बी पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस पाथ हुआ इसका, ये पाथ है, path covered by the body, path covered by the body, so we can say it is a path, जिस path पे, अब ये यहाँ से भी एक और बॉडी है सपोज, तो ये यहाँ से भी जा सकते हैं ना, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये इस टाइप आया, तो बॉडी कवर बाय द टेकन बाय द पाथ पर जो मूवमेंट करती है, तो वी कैन से इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, इट इज डिस्टेंस, ठीक है. और द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी जो डिस्टेंस होगी, तो वी कैन से इट इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट. ओके, सो हाउ कैन बी एक्सप्लेन या हाउ कैन बी राइट द actual definition of this body is, so we can explain with the help of diagram. Okay, अब हम जैसे कि सपोज हमें डेफिनेशंस प्रॉपरली डिस्टेंस की एंड डिस्प्लेसमेंट की लिखना है, तो वी कैन से द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पॉइंट
मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, एसआई यूनिट, अब इसकी बात करें एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो एसआई यूनिट इज ऑलवेज वी कैन से एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जैसे लेंथ है ना, लेंथ मीटर, मीटर भी होती है, इट इज डिनोटेड बाय एम, और सेंटीमीटर भी होती है सीएम। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जिसको सीजीएस बोल सकते हैं, सीजीएस सिस्टम के लिए सेंटीमीटर, और मीटर और लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर भी होती है, सारी ऐसा यूनिट है। ठीक है ना। नाउ डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड अ फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, अब इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट डिस्टेंस जहां से यहां तक डिस्टेंस हुई, ये डिस्प्लेसमेंट होगी एक्चुअली में, बिकॉज इसके पास एक डायरेक्शन है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो पाथ है, टर्न कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, हैव अ डायरेक्शन, सो वी कैन से इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। सेम ऐसा यूनिट मीटर और सेंटीमीटर दोनों की सेम रहती है। ठीक है ना। So it is the distance and concept of distance and displacement. Now, already here written, the shortest path distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. ठीक है, shortest path, और total cover by path, total cover by the body of path distance, जो path, तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और ये शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करना है। यूनिफॉर्म जिसमें एक जैसे हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम टेकन। मोशन चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, change in position. When object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in a uniform motion. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट बॉडी जो है वो कवर करेगी डिस्टेंस, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, when object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in a uniform motion. ये यूनिफॉर्म एक जैसे, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल, सीधी सी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मोशन where object cover unequal distance in equal interval of time, so we can say it is a non uniform motion, it is a type of motion. एक और होता है, जो है इसमें सबसे लास्ट में है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन वी कैन ऑल्सो से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स uniform circular motion, when a body moving in a circular path, it is also type of motion, when a body moving in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. ठीक है, अब इसके एक हम एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो अब हम जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल हुए एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, अ बॉडी हैविंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, motion of a moving car on a straight road, that is called linear motion. Circular motion के example क्या हो, circular motion moving on a electric fan, circular motion electric fan merry go around, motion of a spinning top। तो ये जितने भी रोटेट करते हैं वो सर्कुलर, इनकी जो ब्लेड्स होती है वो सर्कुलर, जैसे मोशन ऑफ दिस प्लैनेट्स वो भी सर्कुलर मोशन में होगा। यूनिफॉर्मली equal distance or equal interval of time, that is uniform. और non uniform, equal distance, unequal distance in equal interval of time, unequal distance होना चाहिए। ठीक है,
जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, बट कहीं और किसी काम से कहीं और दूसरे देश